Hello, welcome back to the third session of Time Value of Money. So, my name is Dr. Rahul Kumar. So, over the next few years, we will explore the fundamental concepts of bond valuation, including the present value approach, yield to maturity, and duration. We will also discuss how to calculate bond valuation and durations using some real examples. Okay. So by the end of this lecture, you will be able to understand the basic concept of bond valuation and how to calculate or how to evaluate basically the bond price. Okay, whether it is undervalued or overvalued, whether you should purchase the bond or not. And at last, you will be able to calculate the duration of the bond. Okay, so without any delay, I'm going to start this session. So first, as you can see on the screen, that is the definition of bond is given. So what is the bond? So bond is basically a fixed income security that represent a loan made by an investor to a borrower. Okay, so you can say कि bond एक basically fixed income security है. ठीक है, जो एक इन्वेस्टर किसको दे रहा है बेसिकली यहाँ पर जो इन्वेस्टर है वो कॉरपोरेट्स को बेसिकली या किसी गवर्नमेंट को यहाँ पर मनी लैंड कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पर तीन बहुत बेसिक कंपोनेंट हैं दैट वी शुड अंडरस्टैंड. नंबर वन इज द फेस वैल्यू. फेस वैल्यू you can say face value maybe the issued price, or the price at which bond will be matured. Okay. However, issue price may be different if the share is issued on discount. Okay. For example, for example, the face value of bond, the face value of bond is rupee 1000. Okay. But company has issued, company has issued this bond at rupee 950. It means on 5% discount. Okay, so here the issued price may be different than the face value. Okay, I hope it is clear to everyone. Now the second and most important term is basically the coupon rate. Here coupon rate basically the interest rate the interest rate paid on the bond's face value, typically maybe semi-annual, annual, maybe uh, quarterly. But most of the time in real world, you will find there may be the provision of semi-annual or annual coupon rate. Okay, so coupon rate is basically the interest rate. Okay, and the maturity date when the bond will be redeemed. बॉन्ड कब रिडीम होंगे इट इज basically maturity date. Now let's discuss about the types of bond. Okay, number one is government bond, typically low risk involved. यहाँ पर जो रिस्क है वो बहुत लो होता है because it is issued by the government. Second is corporate bond, which is generally issued by the companies, but in comparison to government bond, they have higher risk. But obviously, higher yields is also there. Okay, and third is zero coupon bond. So in zero coupon bond, you will not get any interest payment. Okay, so basically no periodic interest payment. So it is generally sold or basically issued at discount and redeemed at face value. For example, अभी हमने देखा कि सपोज यहाँ पर
एक बॉन्ड जो 1000 रुपये का इशू किया गया था, और यहाँ सॉरी 1000 फेस वैल्यू का जो बॉन्ड था उसको 950 पर इशू किया गया है। इसका मतलब 50 रुपीज यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया, 5% डिस्काउंट पर। ओके, सो इफ कंपनी इज नॉट पेइंग एनी इंटरेस्ट हियर, ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट, पीरियोडिक इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है, देयर इज नो पीरियोडिक interest. If no periodic interest, it will be zero coupon bond. In zero coupon bond, you just understand कि यहाँ पर कोई periodic interest payment नहीं होगा, एंड जो बॉन्ड है वो डिस्काउंट पर इशू किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो डिस्काउंट होता है वो बहुत अच्छा एक अमाउंट में होता है। फॉर एग्जांपल ये 5% तो कम है। Generally, these kind of bonds are issued, like at 10% discount and at 15% discount, 20% discount. सो बिकॉज दिस इज द फिक्स इनकम, ठीक है, कि मेरे को 1000 रुपये का बॉन्ड है जो कि 900 में मिला है, सपोज 10% के डिस्काउंट पर, ठीक है। बट जब कंपनी मेरे को ये बॉन्ड मैच्योर करेंगे तो मेरे को 1000 ही मिलेंगे, ठीक है। तो मेरा मैंने कितना इन्वेस्ट करना था, 950 मैंने इन्वेस्ट किया, फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चला हूँ 950 मैंने इन्वेस्ट किया, ठीक है। मेरे को रिपे कितने करेंगे कंपनी, मेरे को रिपे यहाँ पर 1000 करेंगे। सो ये जो 50 रुपी का मेरा यहाँ पर इनकम है, दैट इज माई इनकम, ठीक है। बट दिस इज नॉट द पीरियोडिक इनकम फ्रॉम द इंटरेस्ट। ओके, तो ये वन टाइम यहाँ पर मेरा इनकम है। तो जीरो कूपन बॉन्ड में कोई भी पीरियोडिक इंटरेस्ट नहीं होता, ये डिस्काउंट पर इशूड किए जाते हैं, और जो रिडीम होंगे वो फेस वैल्यू पर रिडीम होंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज कॉलेबल बॉन्ड एंड पुटेबल बॉन्ड, ठीक है। ये जो कॉलेबल बॉन्ड होते हैं बेसिकली इट कैन बी रिडीम्ड बाय द इशूअर बिफोर द मैच्योरिटी, यूजुअली एट प्रीमियम, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट है वो इशूअर के पास राइट है। ओके, यहाँ पर राइट है किसके पास, जो इशूअर है उसके पास एक राइट है कि वो क्या कर सकता है, वो बिफोर मैच्योरिटी जो बॉन्ड्स हैं उनको कॉल कर सकता है, बेसिकली उनको रिडीम कर सकता है, ठीक है। बट यूजुअली एट ए प्रीमियम, ठीक है। और पुटेबल बॉन्ड में जो राइट दिया गया है, पुटेबल बॉन्ड में जो राइट दिया गया है वो बॉन्ड होल्डर के पास राइट है। अब यहाँ पर क्या है कि जो ये बॉन्ड होल्डर है, बेसिकली इफ आई परचेज अ बॉन्ड फ्रॉम ए कंपनी, okay, if I purchase a bond from a company, so here in putable bond basically i have the right I have the right to sell the bond back to the issuer, that is the to the company at a specified price. ओके, तो यहाँ पर जरा समझने की कोशिश करिएगा कि अगर मेरे पास पुटेबल बॉन्ड है तो यहाँ पर राइट मेरे पास है, ठीक है। यहाँ पर राइट मेरे पास है कि मैं बिफोर मैच्योरिटी, ठीक है, मैं बिफोर मैच्योरिटी अपने बॉन्ड को सेल बैक कर सकता हूँ टू द इश्यूअर एट ए स्पेसिफाइड प्राइस, ठीक है। और कॉलेबल बॉन्ड में क्या था, कॉलेबल बॉन्ड में जो राइट था वो किसके पास था, वो इशूअर के पास था। वहां पर इशूअर यानी कंपनी के पास राइट ये था कि यहाँ पर कंपनी कॉल कर सकती है, यानी कि कंपनी रिडीम कर सकती है आपके बॉन्ड्स को बिफोर द मैच्योरिटी। और कंपनी रिडीम कब करेंगे, ठीक है, कंपनी रिडीम कब करेंगे, ठीक है, कंपनी रिडीम तब करेंगे बिफोर द मैच्योरिटी आपके बॉन्ड को। सपोज कंपनी ने कोई बॉन्ड इशू किया और 5% इंटरेस्ट रेट पर वो या कूपन रेट पर वो बॉन्ड इशू किया गया है, ठीक है। एक दो साल, 5 इयर्स का हम टाइम लेके चलते हैं, एक दो साल बाद क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट है मार्केट में वो कम हो गया है, 5% से 3%, 2% पर आ गया है। तो अगर कंपनी आपको 5% का इंटरेस्ट दे रहे हैं तो इसका मतलब कंपनी को नुकसान है, कंपनी आपको ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, क्योंकि मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो तो 3% चल रहा है, 3% चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में कंपनी क्या करेंगे, आपसे बॉन्ड को वापस लेंगे, बेसिकली आपके बॉन्ड को रिडीम करेंगे, ठीक है। और जो भी वहां से फंड्स आएंगे, बेसिकली जो भी उसके बाद सारे बॉन्ड को रिडीम करने के बाद और मार्केट में नए बॉन्ड इशू कर देंगे जो कि ऑलरेडी बहुत सस्ता मिल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पर, यू कैन सी हेयर कि सपोज यू बाई ए कॉलेबल बॉन्ड, ठीक है, फॉर $1000 विद ए 5% कूपन रेट मैच्योरिंग इन 10 years,
ठीक है। एक कॉलेबल बॉन्ड है जो $1,000 का मार्केट में अभी जिसका फेस वैल्यू है, 5% कूपन रेट है एंड मैच्योर होगा वो 10 ईयर्स में। अब यहाँ पर बेसिकली एक कॉलेबल फीचर फीचर दिया गया है कि द इशूअर यानी बेसिकली द कंपनी हैज द राइट टू कॉल द बॉन्ड आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स बेसिकली यहाँ पे टाइम स्पेसिफाई कर देंगे, 5 साल बाद ही वो कॉल कर सकते, 5 साल से पहले कॉल नहीं कर सकते। दिस इज द रेस्ट्रिक्शन दैट कैन बेसिकली कंपनी कैन इम्पोज। ओके। If the interest rates drops to 3%, initially it was 5%, but right now it is 3%, the issuer might decide to call your bond. तो यहाँ पर ईश्वर के पास एक राइट है कि वो चाहे तो आप आपके जो बॉन्ड है उनको कॉल कर सकता है रिडीम करने के पर्पज से। देन यू पे बैक द $1,000, बेसिकली आपको अपना $1,000 मिल जाएगा जब आपका रिडीम होगा। एंड जो कंपनी है वो क्या करेंगे, फिर से री इशू करेंगे न्यू बॉन्ड्स को एट द लोअर इंटरेस्ट रेट। ठीक है। तो यहाँ पर जो बेसिकली जो बॉन्ड होल्डर हैं उनको तो नुकसान हो रहा है, लेकिन कंपनी को यहाँ पर फायदा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि यू लूज द बॉन्ड एंड इट्स हायर इंटरेस्ट पेमेंट बट गेट योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट बैक। तो बेसिकली आपका यहाँ पर जो आपका क्या होगा, आपके यहाँ पर नुकसान होगा, जो आपको पहले 5% का मिल रहा था यहाँ पर इंटरेस्ट, अगर अब आप मार्केट में इसके नए बॉन्ड खरीदेंगे तो आपको 3% ही मिलेगा। तो ऐसे ऐसा क्यों, ऐसे बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट ही क्यों करोगे? बिकॉज यहाँ पर कंपनी आपको इसके लिए कुछ प्रीमियम पे करते हैं। ये जो कंपनी ने राइट लिया है, ठीक है, ये जो कंपनी ने राइट लिया है इसके लिए यहाँ पर कंपनी आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करेंगे। ओके। कंपनी आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है। नाउ द सेकंड इज पुटेबल बॉन्ड। इन केस ऑफ पुटेबल बॉन्ड, यहाँ पर राइट किसके पास है? यहाँ पर जो राइट है, यहाँ पर जो राइट है वो किसके पास है? यहाँ पर राइट है बॉन्ड होल्डर के पास, बेसिकली जो इन्वेस्टर है उसके पास। तो यहाँ पर इन्वेस्टर क्या कर सकता है? यहाँ पर इन्वेस्टर कर सकता है कि वो अपने बॉन्ड को बिफोर मैच्योरिटी सेल कर सकता है कंपनी को वापस। फॉर एग्जाम्पल, यू बाई ए पुटेबल बॉन्ड, ओके, you buy a putable bond for $1,000 with a 4% coupon rate and which is also maturing in 10 years. So now you can sell it back to the issuer after 5 years. यहाँ पे ये limitation एक लगाया है, ठीक है, and the face value of $1,000। तो आप 5 साल बाद इसको $1,000 में सेल बैक कर सकते हैं कंपनी को। After 5 years, if the interest rate rises to 6%, you can choose to sell the bond back to the issuer for 1,000। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर आपने बॉन्ड को खरीदा हुआ था 4% कूपन रेट पर, ठीक है, अभी मार्केट में जो कूपन रेट है वो 6% हो गया है। तो इसका मतलब आपको जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो 4% का मिल रहा है, यानी कि आपकी $1,000 पे 4% यानी ₹40 पर एनम आपका इनकम हो रहा है। लेकिन अगर आप यही अमाउंट कहीं और लगाए होते आज की डेट पर तो वहां से आपको 60 मिल रहा होता 6% के हिसाब से। तो इसका मतलब अभी करंट में तो आपको यहाँ पर नुकसान हो रहा है। ठीक है। अभी करंट में तो आपको यहाँ पर नुकसान हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आपके पास पुटेबल फीचर है जिसके लिए आपने एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया हुआ है कंपनी को, ऐसे केस में आप कंपनी से बोलेंगे कि आप अपने बॉन्ड हमसे वापस ले लीजिएगा और हम नए बॉन्ड मार्केट से खरीद लेंगे जो कि 6% कूपन रेट मिल रहा है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर है, जो बॉन्ड होल्डर है, उसको 2% का प्रॉफिट हो जाएगा, बेसिकली उसकी इनकम 2% से और बढ़ जाएगी। ठीक है। सो दिस इज द पुटेबल बॉन्ड। तो यहां पर ये बेसिकली क्या करें, दिस अलाउज यू टू री इन्वेस्ट दैट मनी इन ए न्यू बॉन्ड एट ए हायर रेट इंस्टीड ऑफ स्टिकिंग विद द लोअर 4% बॉन्ड। आई होप बोथ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। बोथ द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू एवरीवन? या, so these are the some types of bond that we have discussed so far. Now come to the valuation। ठीक है। देखिए, वैल्यूएशन करते समय आप एक बात याद रखिएगा, किसी भी सिक्योरिटी का वैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी सिक्योरिटी का वैल्यूएशन कर रहे हैं, सो वैल्यूएशन इज नथिंग, ठीक है, वैल्यूएशन इज नथिंग
वैल्यूएशन इज बेसिकली द प्राइस, ठीक है, द प्राइस एट प्रेजेंट, प्राइस एट प्रेजेंट। एंड ये बेसिकली यहां पर आपको क्या करना है कि जो भी आपको फ्यूचर में एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज होंगे, जो भी एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स हैं, तो इट इज बेसिकली द प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज। ओके, तो फ्यूचर में जितने भी एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हैं, अगर मैं आज उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लूं तो मेरे बॉन्ड का भी प्राइस निकल आता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे अगर हम बॉन्ड की बात करें, ठीक है, बॉन्ड की हम बात करें तो बॉन्ड के केस में, ठीक है, बॉन्ड के केस में हमारी दो ही इनकम होती हैं। ठीक है, पहला इनकम होता है हमारा बेसिकली इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम, यानी कि बेसिकली यहाँ पर सॉरी कैश, हम उसको बोलते हैं, दो कैश इनफ्लोज होंगे हमारे। एक तो हमारा नंबर वन इंटरेस्ट यहाँ से आएगा, एक तो कैश इनफ्लो यहाँ से आएगा, और दूसरा जो कैश इनफ्लो होगा वो हमारा ऑन मैच्योरिटी डेट होगा, ऑन मैच्योरिटी डेट, ठीक है, जो हमारी रिडेम्पशन वैल्यू होगी। तो ये मेरे फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हैं। तो इन फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज को ध्यान से सुनिएगा, इन फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज को अगर मैं प्रेजेंट में लेके आ जाऊं, यानी T0 पर लेके आ जाऊं दोनों को, तो ये मेरे बॉन्ड का प्राइस होगा, यही मेरा बॉन्ड वैल्यूएशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि इफ I convert all the future expected cash flows into present value, ठीक है, that will be my bond price. Okay, so we can do one question here. Okay, we can do one question here. Yeah. So suppose you want to value a bond with the following characteristics. ठीक है, the face value of bond is $1,000, coupon rate 6% annually, maturity is basically 4 years, market interest rate or you can say yield to maturity is 4%। सो ये तो आपका इंटरेस्ट हो गया, कूपन रेट। और ये जो YTM होता है, मार्केट इंटरेस्ट रेट जो होता है, इस पर बेसिकली आपको सारे फ्यूचर कैश फ्लोज को फैच करना है प्रेजेंट वैल्यू पर, ठीक है, जिस पर हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो पहले तो मैं एक टाइमलाइन के हिसाब से बताता हूँ, एक टाइमलाइन से इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। या सो दिस इज T0, T1, T2, T3, T4। ओके, सो फर्स्ट इंटरेस्ट जो मेरे को मिलेगा वो आफ्टर 1 ईयर, दैट इज कितना, $1,000 का 6%, दैट इज $60। सेम $60 I will get here, again $60, and here $60 plus $1,000 maturity or basically the redemption value। ठीक है, सो दिस इज माय फ्यूचर कैश फ्लोज। अब ये सारे जो कैश फ्लोज हैं मेरे को इस वाले टाइम पर लेके आने, ठीक है, यहां पर लेके आना है। ओके, तो जब मैं सबको प्रेजेंट वैल्यू यानी आज के डेट पर फैच कर लूंगा तो मेरा ऑब्वियसली बॉन्ड वैल्यूएशन निकल आएगा कि आज मेरे बॉन्ड का प्राइस कितना है। तो हमें जो यहाँ पर बेसिकली जो YTM दिया हुआ है इट इज 4%, तो मैं क्या करूंगा, इन सबको 4% के रेट पर प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा। तो विदाउट फॉर्मूला मैं यहाँ पर पहले लिख रहा हूँ, तो सपोज ये 60 है। ओके, दिस इज माय फ्यूचर वैल्यू, और मेरे को करना क्या है, मेरे को इसको खींचना है
1.104 की पावर 1, ठीक है, प्लस अगेन 60 1.104 की पावर 2, प्लस अगेन 60 1.04 की पावर 3, and here 60 1160. Okay, total is 1160. So here 1160 divided by 1.04 की पावर 4, ठीक है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा दैट इज 1074.38. दिस इज माय बॉन्ड प्राइस। ओके, ठीक है, दिस इज माय बॉन्ड प्राइस। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। और इफ यू वांट टू राइट ए फॉर्मूला, ठीक है, so basically bond price is equal to summation 1 point, or you can say 1 plus YTM into maturity की power n plus फ्यूचर वैल्यू, बेसिकली यहाँ पर f बेसिकली आई एम कंसीडरिंग, ये जो f है ये हमारा मैच्योरिटी वैल्यू है, 1 प्लस YTM, ओके, 1 प्लस YTM nth, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली इंटरेस्ट इनकम, बेसिकली जो कैश फ्लोज है, और दिस इज रिडेम्पशन वैल्यू। इट इज क्लियर टू एवरीवन? या, ठीक है। एंड नाउ इन द सेम क्वेश्चन वी वुड ऑल्सो लाइक टू कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर हम ड्यूरेशन भी कैलकुलेट करना चाहते हैं, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। सो मैकुलेट ड्यूरेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं। मैकुलेट ड्यूरेशन कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ वेटेड एवरेज टाइम अंटिल कैश फ्लोज आर रिसीव्ड, ठीक है। जब तक हमको कैश फ्लोज रिसीव होते हैं उसका वेटेड एवरेज आप जो है कैलकुलेट कर लो, ठीक है, तो आपका ड्यूरेशन भी निकल आता है, ठीक है। यू कैन सी हियर, सो मैकुले दिस इज द वेटेड एवरेज टाइम अंटिल कैश फ्लोज आर रिसीव्ड। सो फॉर्मूले से चाहो तो फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो, बट आई प्रेफर कि एक टेबल बना के मैं आपको ये बताऊं, ठीक है। चलिए, तो मैं एक टेबल यहाँ पर बना रहा हूँ। टेबल से थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को कराना, क्योंकि यहाँ पर कोई फॉर्मूला हम क्रैम करने की कोशिश नहीं कर रहे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम एक कॉलम लेंगे ईयर का, ईयर 1 2 3 4, 4 ईयर्स हैं तो 4 ईयर्स ले लिया यहाँ पर। देन कैश फ्लोज, and cash flows we have already calculated here, 60 in the first year, 60 in the second year, again 60, and here 1060। oh sorry, ये जो ऊपर है यहाँ भी 1060 होगा, 1060, ओके, 1060, okay. So these are my cash flows. Now I will calculate the present value factor at 4%. Okay, so present value factor at 4%, basically 1 divided by 1.04 की पावर 1, सेम 1 divided by 1.04 की पावर 2,
1 डिवाइड बाय 1.04 की पावर 3, 1 डिवाइड बाय 1.04 की पावर 4। ओके, यही हमने ऊपर भी किया था सेम। ठीक है, so it is 0.9615, it is 0.9246, it is 0.8890, it is 0.8558. Okay, now इसका और इसका मल्टीप्लाई करिए, दोनों कॉलम का। दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक है, मैं अभी कैलकुलेटर ले लेता हूँ। दिस इज 57.69 सेकेंड, 924 सेकेंड। दिस इज 55.48, 60 into third one, 53.34, last one 907.38. ओके, ठीक है। नाउ दिस इज ए बी। ठीक है, अभी I can say this is T, and these are the present value. The next column is basically present value into T. So basically you will have to multiply from this column. So it is 57.69, it will remain same. Second, 55 into 2, triple 11. Okay, approx triple 11. Then 53.34 into 3, that is 160.02. And last 907.38 into 4, that is 3629.52. ओके, जस्ट इसका टोटल करना है, इसका टोटल करना है। ठीक है, तो इसका टोटल कर लेते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। 57.69 प्लस ट्रिपल 11 प्लस 160.02 प्लस 3629.52, basically 3958.23। and this is 57.69 plus 55.48 plus 53.34 plus 907.38. This is 1073.89. So now what is the bond duration? Bond duration will be 3958.23 divided by 1073.89. Okay, 3958.23 divided by 1073.89, that is 3.23 years. ठीक है, so this is the bond duration. I hope it is clear to everyone. So bond valuation is very simple, concept where you just have to fetch all the future values at present value. So अब यहाँ पर हमारे जो कैश फ्लोज है, ठीक है, वो मेरे इंटरेस्ट बेसिस जो कूपन इनकम होता है और मेरा लास्ट में जो मैच्योरिटी वैल्यू है वहां पर मेरे को जो मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है।
ड्यूरेशन इज नथिंग, मैक्युलर ड्यूरेशन कुछ नहीं है, उसका फॉर्मूला देखकर आपको घबराना नहीं है, ठीक है। जो ड्यूरेशन होता है बेसिकली वेटेड एवरेज होता है बॉन्ड का। जब तक आपको कैश फ्लोज मिल रहे हैं तब तक का उसका वेटेड एवरेज निकाल लो। जैसे इस केस में मेरे को चारों साल में कैश फ्लोज अकर हो रखे हैं यहाँ पर, तो मैंने जस्ट क्या किया है, इसका वेटेड एवरेज निकाल लिया। तो ये जो वेटेड एवरेज आया दैट इज 3.23 ईयर्स, दैट इज माय बॉन्ड ड्यूरेशन। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। So thank you. We will meet in the next video very soon.